Now, as seen in the previous lecture, WBCs are classified as granulocytes and agranulocytes depending upon the presence and absence of granules in the cytoplasm, whereas granulocytes are further classified as neutrophil, basophil and eosinophil. This classification is done on the basis of staining ability of the cell. Last time मैंने बताया था, depending upon the type of cell, depending upon the type of stain they accept, they are classified as neutrophil, basophil and eosinophil. Last time मैंने आपको eosinophil के बारे में explain किया था. So the second type of cell is basophil, also called as cyanophils. Now this basophil or cyanophil is comparatively small in size, but the peculiarity of this cell is this cell has large size of granules. Granules are comparatively larger in size. In this case, you can see fine granules are present, but the granules are numerous. In this case, the granules are comparatively larger in size, but the number of granules are very less. यानी बहुत कम granules हैं, लेकिन बड़े बड़े साइज के granules होते हैं. इसका जो न्यूक्लियस होता है, ये न्यूक्लियस ट्विस्टेड होता है, बाइलोब्ड होता है. Sometime it resemble dumbbell shape. Dumbbell shape का twisted bilobed nucleus present होता है. Now this cell accept the basic stain. Basic stain, like you can say, methylene blue is a basic stain, so it appears blue in color. तो ये ब्लू कलर की नजर आने वाली सेल जो मिथिलीन ब्लू बेसिक स्टेन को एक्सेप्ट करती है, इनका प्रपोर्शन, ये सेल साइज में छोटी है. ओके, इनका प्रपोर्शन कितना है? दे आर वेरी लेस, 0.5 to 1%. Among total WBC, they are less than 1%. And the function of this cell is, these cells are responsible for the secretion of three chemicals such as heparin, histamine and serotonin. Heparin is anticoagulant, which doesn't allow blood to clot when the blood is in the circulation, whereas histamine is responsible for inducing allergic reaction. Allergic reaction को stimulate करने के लिए histamine responsible है. So this is the second type of cell present among granulocyte. The third type of cell is called as eosinophil, also called as acidophil. It is called as acidophil because it accepts the acidic stain. उसके पास, इस सेल के पास acidic stain के लिए affinity है, thus it is called as acidophils. And the example of acidic stain is eosin. Eosin नाम का acidic stain है जिसको ये accept करती है, इसलिए इसको eosinophils भी कहते हैं. Now, the morphology of the cell, the appearance of the cell की size more or less neutrophil जितनी है. सेल के अंदर ग्रेन्यूल्स बड़े साइज के हैं. इसके अंदर जो ग्रेन्यूल्स है वो बेसिकली वैक्यूल्स के जैसे नजर आते हैं, और इसके अंदर न्यूक्लियस बाइलोब्ड होगा. न्यूक्लियस इज अगेन बाइलोब्ड, बट दिस न्यूक्लियस लुक्स लाइक द रिसीवर ऑफ द टेलीफोन. टेलीफोन के रिसीवर के जैसा, व्हाट्सएप के अंदर जो आइकन होता है टेलीफोन रिसीवर का, उसके जैसा ये नजर आता है. इनका प्रपोर्शन कितना है? इनका प्रपोर्शन है ओनली 1 to 3%. Among total WBC, they are just 1 to 3%. They accept acidic stain. Function क्या है? They are responsible for secreting antihistamine. Antihistamine is responsible for suppressing allergic reaction. जब भी बॉडी में एलर्जी होती है तो इनका काउंट इंक्रीज हो जाता है टू सप्रेस द एलर्जिक रिएक्शन, बिकॉज दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द सिक्रीशन ऑफ एंटीहिस्टामाइन. दे आर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर सिक्रीटिंग एंटीटॉक्सिन्स. तो बॉडी के अंदर डिटॉक्सिफिकेशन के लिए भी ये सेल रिस्पॉन्सिबल है. And up to certain extent, they are responsible for engulfing antigen-antibody complex. They destroy antigen-antibody complex. Okay. So these are about the function of eosinophil. So these are the different type of granulocytes. ये granulocytes के 3 type हो गए. Now starting with the next type, agranulocytes. नाम से ही मालूम पड़ता है, cells without granules are called as agranulocyte. ऐसी सेल जिसके साइटोप्लाज्म में ग्रेन्यूल्स नहीं है. In both this case you can see the cytoplasm is clear without any dot, without any granules. अब इसमें 2 टाइप की सेल्स होती हैं, एक है लिम्फोसाइट और एक है मोनोसाइट.
नाउ लिम्फोसाइट और मोनोसाइट दोनों का मिला के प्रपोर्शन कितना है? 28% के आसपास है। यहां पे अप्रोक्सीमेटली रेंज दिया हुआ है। नाउ लिम्फोसाइट इज द स्मॉलेस्ट WBC इन टर्म्स ऑफ साइज। इफ वी सी, जितने भी WBC है उसमें सबसे छोटा WBC लिम्फोसाइट है। इसका साइटोप्लाज्म क्लियर है, मगर इसके अंदर लार्ज ओवल शेप न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। न्यूक्लियस ऑलमोस्ट ऑक्यूपाई द एंटायर स्पेस ऑफ द सेल। साइटोप्लाज्म थोड़ा सा नजर आता है। इनका प्रपोर्शन कितना है? 25 to 30%। 25 to 30% मीन्स इन टर्म्स ऑफ नंबर अगर हम देखें, सबसे ज्यादा अबेंडेंट WBC न्यूट्रोफिल है और सेकेंड नंबर पे लिम्फोसाइट है। नाउ What is the function of lymphocyte? Remember, different lymphocyte. अब lymphocyte का भी क्लासिफिकेशन है। lymphocyte में भी अलग अलग टाइप्स हैं। यहां पे मैंने दो अल्फाबेट लिख के छोड़ दिया है, T और B. Means lymphocytes are classified as T lymphocyte and B lymphocyte. T और B lymphocyte क्या है, शॉर्ट में आपको बताएं। वो लिम्फोसाइट जिनका मैचुरेशन, वो लिम्फोसाइट, देखो फॉर्मेशन तो बोन मैरो में होता है, लेकिन वो लिम्फोसाइट जिनका मैचुरेशन थाइमस में होगा विल बी कॉल्ड एज टी लिम्फोसाइट, और वो लिम्फोसाइट जिनका मैचुरेशन बोन मैरो में होगा विल बी कॉल्ड एज बी लिम्फोसाइट. So depending upon the site of maturation, lymphocytes are classified as T lymphocyte and B lymphocyte. Depending upon the साइट ऑफ मैचुरेशन, कहां पे उनका मैचुरेशन होता है, उसके हिसाब से उनको क्लासिफाई किया गया है टी लिम्फोसाइट और बी लिम्फोसाइट में. रिमेंबर, टी लिम्फोसाइट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी, whereas B lymphocyte is responsible for humoral immunity. इसकी डिटेल्स हम हेल्थ एंड डिजीज चैप्टर में इम्यून सिस्टम में पढ़ेंगे, अभी सिर्फ नाम याद रखो. T lymphocyte is responsible for cell mediated immunity, whereas B lymphocyte is responsible for humoral immunity, also called as antibody mediated immunity. Now remember, this T lymphocyte is further classified into 4 categories. T lymphocyte की भी 4 कैटेगरीज हैं. कौन कौन सी 4 कैटेगरीज हैं? हेल्पर टी सेल, किलर टी सेल, सप्रेसर टी सेल एंड मेमोरी टी सेल. टी लिम्फोसाइट के 4 टाइप हैं, हेल्पर टी सेल, किलर टी सेल, सप्रेसर टी सेल एंड मेमोरी टी सेल. ये टी लिम्फोसाइट के 4 टाइप हैं और चारों सेल का फंक्शन अलग अलग है. और बी सेल जो है यानी बी लिम्फोसाइट, उसके अंदर 2 टाइप हैं. उसके अंदर एक है प्लाज्मा सेल विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोड्यूसिंग एंटीबॉडीज. जो एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करने वाली सेल, उसका नाम प्लाज्मा सेल है, जिससे हमको ह्यूमरल इम्यूनिटी मिलती है, जो हमारी बॉडी में एंटीजन को डिस्ट्रॉय करने के लिए, पैथोजन को डिस्ट्रॉय करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है. एंड द सेकेंड टाइप इज मेमोरी बी सेल. तो बी लिम्फोसाइट की 2 टाइप, प्लाज्मा सेल एंड मेमोरी बी सेल, यानी टोटल 4 और 2 6 टाइप के लिम्फोसाइट्स होते हैं. एंड ईच सेल हैज इट्स ओन फंक्शन. नाउ the last type of agranulocyte is monocyte. Remember, monocyte is the largest WBC in terms of size. जितने भी WBC यहां पे बने हुए हैं उसमें in terms of size अगर हम देखें तो सबसे बड़ा WBC मोनोसाइट है, जिसका साइटोप्लाज्म क्लियर है विदाउट एनी ग्रेन्यूल बिकॉज इट इज अग्रेनुलोसाइट. इसका न्यूक्लियस लार्ज होता है, बीन शेप न्यूक्लियस है जिसमें लोब्स नहीं है, जस्ट बीन शेप न्यूक्लियस है. मीन्स इट इज मोर और लेस किडनी शेप, और यू कैन से समटाइम इट लुक्स लाइक हॉर्स शू शेप, वॉट एवर, इट इज अ बीन शेप न्यूक्लियस. इनका प्रपोर्शन कितना है? 3 to 5% अमंग टोटल WBC. Now, these cell monocytes are responsible for giving rise to macrophages. ये मैक्रोफेज जो कनेक्टिव टिश्यू में प्रेजेंट होते हैं, मैक्रोफेजेस, उनके फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है. एंड मैक्रोफेज एंड मोनोसाइट विच इज प्रेजेंट इन द ब्लड, दे आर फेगोसाइटिक इन नेचर. दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर फेगोसाइटोसिस. फेगोसाइटोसिस इन द सेंस दे आर कैपेबल ऑफ एंगल्फिंग द फॉरेन पार्टिकल. इवन हमारी बॉडी में, हमारी ब्लड में जो डेड टिश्यूज होते हैं, डेड सेल्स होती हैं, उनको भी ये एंगल्फ कर जाते हैं. दैट इज वाई समटाइम दे आर कंसिडर्ड एज scavengers. They are considered as scavengers of blood cell. Okay, so these are the different type of WBCs. यहां पे WBC का टॉपिक
कंप्लीट होता है। अब तक हमने आरबीसी पढ़ा, डब्ल्यूबीसी पढ़ा। नाउ विल स्टार्ट विद द थर्ड टाइप ऑफ सेल प्रेजेंट इन द ब्लड, दैट इज प्लेटलेट्स। Now the third type of blood cell is thrombocytes, also called as platelets. As we know, ब्लड में 3 टाइप की सेल्स होती हैं, आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज एंड प्लेटलेट्स। तो प्लेटलेट के बारे में मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं। प्लेटलेट्स के फॉर्मेशन को बोलते हैं थ्रोम्बोपोइसिस। प्लेटलेट्स आर कॉल्ड एज थ्रोम्बोसाइट एंड द फॉर्मेशन ऑफ प्लेटलेट इज कॉल्ड एज थ्रोम्बोपोइसिस। अभी प्लेटलेट का फॉर्मेशन कहां पर होता है? बोन मैरो में होता है। बोन मैरो में कुछ प्रिकर्सर सेल हैं, कुछ मदर सेल हैं जो प्लेटलेट के फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। दे आर कॉल्ड एज मेगाकैरियोसाइट और मेगाकैरियोब्लास्ट भी बोल सकते हैं। मेगाकैरियोसाइट ये प्लेटलेट्स की मां है, ये प्लेटलेट्स के फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। ये बोन मैरो में प्रेजेंट होती हैं। बोन मैरो में मेगाकैरियोसाइट्स, मेगा मीन्स लार्ज साइज, कैरियन मीन्स न्यूक्लियस एंड साइट मीन्स सेल, मतलब बड़े न्यूक्लियस वाली सेल। ये मेगाकैरियोसाइट्स का फ्रेगमेंटेशन होता है, मतलब बोन मैरो में मेगाकैरियोसाइट फट जाती है, उसके टुकड़े हो जाते हैं और उनके टुकड़ों को हम कहते हैं थ्रोम्बोसाइट्स। रिमेंबर, थ्रोम्बोसाइट यानी कि प्लेटलेट इज नॉट अ कंप्लीट सेल, इज अ पार्ट ऑफ सेल, इज अ फ्रेगमेंट ऑफ सेल। वो सेल का टुकड़ा है, कंप्लीट सेल नहीं है, जिसे हम थ्रोम्बोसाइट्स कहते हैं। इनकी साइज जो होती है वो आरबीसी और डब्ल्यूबीसी के कंपैरिजन में बहुत छोटी है। देखो, आरबीसी की जो साइज होती है वह अप्रोक्सीमेटली 7 माइक्रोमीटर की होती है। डब्ल्यूबीसी की जो साइज होती है वो 8 to 10-12 माइक्रॉन्स तक हो सकती है और प्लेटलेट की जो साइज होती है वो 2 to 3 माइक्रोमीटर की ही होती है। तो प्लेटलेट्स आर द स्मॉलेस्ट फॉर्म्ड एलिमेंट्स, स्मॉलेस्ट फॉर्म्ड पार्टिकल प्रेजेंट इन द ब्लड। तो प्लेटलेट को थ्रोम्बोसाइट कहते हैं, प्लेटलेट के फॉर्मेशन को थ्रोम्बोपोइसिस कहते हैं और प्लेटलेट को जन्म देने वाली सेल को मेगाकैरियोसाइट्स कहते हैं जो बोन मैरो में प्रेजेंट होती है। इसके फ्रेगमेंटेशन से थ्रोम्बोसाइट्स का फॉर्मेशन होता है। थ्रोम्बोसाइट ये मेगाकैरियोसाइट्स के फ्रेगमेंट्स हैं। नाउ these are the small in terms of size, they are very small particles, more or less oval shape without nucleus. Obviously no question of having the nucleus because it is not a complete cell. वो सेल का टुकड़ा है, उसमें कंप्लीट न्यूक्लियस नहीं हो सकता। ओके, इनका जो काउंट है वो कितना होता है? 2.5 to 4.5 lakh per cubic mm of blood. Now, if you remember, आरबीसी का काउंट मिलियंस में था, अप्रोक्सीमेटली 5 मिलियन था। डब्ल्यूबीसी का काउंट 5 to 11,000 के आसपास था। इनका काउंट दोनों के बीच में है, 2.5 to 4.5 लाख पर क्यूबिक एमएम ऑफ ब्लड। नाउ, अगर प्लेटलेट का काउंट डिक्रीज हो जाए, नॉर्मल से कम हो जाए, सो दिस कंडीशन इज कॉल्ड एज थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। डिक्रीज्ड काउंट ऑफ प्लेटलेट इज कॉल्ड एज थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। कभी कभी कुछ डिजीज में प्लेटलेट काउंट रिड्यूस हो जाता है। वेरी कॉमनली ऑब्जर्व्ड इन डेंगू में या कभी कभी मलेरिया में भी प्लेटलेट काउंट रिड्यूस हो जाता है। प्लेटलेट काउंट रिड्यूस होने से रिस्क फैक्टर इंक्रीज होता है। कैसा रिस्क फैक्टर? इंटरनल ब्लीडिंग के चांसेस बढ़ जाते हैं, बिकॉज प्लेटलेट्स आर मेनली कंसर्न विथ ब्लड कोगुलेशन। वो ब्लड को क्लॉट करने में हेल्प करती हैं। तो अगर किसी का प्लेटलेट काउंट ट्रेमेंडसली रिड्यूस हो जाए, थाउजेंड्स में आ जाए, लाख से थाउजेंड्स में आ जाए, तो अगर उसको एक्सटर्नल या इंटरनल इंजरी होगी और ब्लीडिंग स्टार्ट होगी तो वो ब्लीडिंग जल्दी कंट्रोल में नहीं होगी, उसको एक्सेसिव ब्लड लॉस हो सकता है। नाउ, फंक्शन ऑफ प्लेटलेट का क्या फंक्शन है बच्चों? प्लेटलेट्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द सिक्रीशन ऑफ, दे सिक्रीट्स प्लेटलेट फैक्टर। उसमें से एक फैक्टर निकलता है, केमिकल निकलता है जिसको प्लेटलेट फैक्टर कहते हैं, जो ब्लड क्लॉटिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है। इट इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर सीलिंग द रप्चर्ड ब्लड वेसल। हमारी बॉडी में जब कोई ब्लड वेसल रप्चर होती है एक्सटर्नल इंजरी में या इंटरनल इंजरी में, तो उसको सील करने के लिए प्लेटलेट्स आर रिस्पॉन्सिबल। हाउ डू दे सील? वो प्लेटलेट्स का वहां पे प्लग बना देते हैं, यानी थोड़ी सी प्लेटलेट्स क्लॉट होके उस ओपनिंग को प्लग कर देती है, सील कर देती है। उस प्लेटलेट के प्लग को थ्रोम्बस भी हम कहते हैं। ओके, नाउ
दे आर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द सिक्रीशन ऑफ सीरोटोनिन। वो एक केमिकल सिक्रीट करते हैं जिसका नाम है सीरोटोनिन, एंड सीरोटोनिन इज वेसोकंस्ट्रिक्टर। वेसोकंस्ट्रिक्टर मीन्स दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉन्ट्रैक्टिंग द ब्लड वेसल। वेसो का मतलब है वेसल्स और कंस्ट्रक्टर का मतलब कॉन्ट्रैक्ट करने वाले। मतलब ये सीरोटोनिन जो है ना, ये हमारे ब्लड वेसल को थोड़ा कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, नैरो करते हैं, अंदर के ल्यूमेन को रिड्यूस करते हैं। अगर ब्लड वेसल कॉन्ट्रैक्ट होती है, ल्यूमेन अंदर का स्पेस रिड्यूस होता है, तो अंदर का जो वॉल्यूम होगा ना, अंदर की जो स्पेस होगी वो भी रिड्यूस हो जाएगी, और स्पेस रिड्यूस होने से ब्लड प्रेशर इंक्रीज होता है। Thus you can say with the help of serotonin they help in regulating the blood pressure. तो बच्चों, this all about the blood platelet. So we have seen 3 type of cells present in the blood. तीनों के बारे में मैंने आपको एक्सप्लेन किया। Now the next part is blood clotting or coagulation of blood. What is coagulation or clotting of blood? Blood is in the liquid form when it is present in the body. Within the blood vessel, blood is in the form of liquid due to presence of natural anticoagulant called as heparin. It remains in the liquid form. जब तक वो हमारी बॉडी के अंदर फ्लो हो रहा है, वो लिक्विड फॉर्म में ही रहेगा. But once it comes out of the body, it converts into semi-solid form or gel-like structure. More or less, it looks like a solid form. This mechanism of converting liquid blood into solid form is called as blood clotting or coagulation of blood. The process of converting liquid blood, which is present within the body, it converts into solid form when it comes out of the body. This mechanism is called as blood clotting mechanism. You might have listened about the disease, a genetic disorder called as hemophilia. हीमोफीलिया में क्या होता है, ब्लड क्लॉटिंग मैकेनिज्म जो होता है वो बहुत डिले हो जाता है या कभी कभी ऑलमोस्ट एंड हो जाता है। दैट मीन्स एक नॉर्मल इंसान का ब्लड जब बॉडी से बाहर आता है तो वो कितनी देर में क्लॉट होता है, 2 to 8 मिनट इज द लिमिट। मिनिमम 2 and मैक्सिमम 8 मिनट, इसके अंदर ब्लड क्लॉट हो जाना चाहिए। अगर ब्लड क्लॉट होने में इससे ज्यादा टाइम लगता है, आधे घंटे में ब्लड क्लॉट होता है, so this might be due to a disease called as hemophilia. Hemophilia also called as bleeder's disease. It is due to X-linked disease. It is a type of disease called as X-linked disease और X-linked inheritance की वजह से होता है, एक genetic disorder है। By the way, now blood clotting is observed, the process is observed in 2 forms. It is intrinsic as well as extrinsic process. वो intrinsic भी हो सकता है, extrinsic भी हो सकता है। अगर intrinsic process है तो contact of blood with any foreign substance, when blood comes out, it comes in contact with any foreign substance. It is due to damage of blood vessel. जब blood vessel damage होती है, हमारी external blood vessel damage होती है, blood किसी भी foreign substance से, foreign material से, बाहर के particle से टच में आता है, हवा से टच में आता है, so that will be the intrinsic process. और extrinsic process है contact of blood with damaged tissue. जब blood vessels damage होती है, damage of tissue outside the vessels. कॉन्टेक्ट ऑफ ब्लड विद डैमेज टिश्यू, जब ब्लड डैमेज टिश्यू से कॉन्टेक्ट में आता है, डैमेज ऑफ टिश्यू आउटसाइड द वेसल के बाहर टिश्यू का डैमेज होना, दिस विल बी कॉल्ड एज एक्सट्रिंसिक प्रोसेस। हाउएवर, इन बोथ दिस प्रोसेस ब्लड की क्लॉटिंग तो होगी। कैसे होती है वो मैं आपको समझाता हूं। देखो, ब्लड को क्लॉट करने के लिए ओवरऑल 12 फैक्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल। 12 फैक्टर्स हैं जो एक प्रॉपर ऑर्डर में एक के बाद एक कास्केड फॉर्म में काम करते हैं और उसके बाद जाके ब्लड क्लॉटिंग कंप्लीट होती है। वो पूरे 12 फैक्टर्स के बारे में हमको एट प्रेजेंट नहीं पढ़ना है। इसमें ये इंट्रिंसिक प्रोसेस में कास्केड ऑफ क्लॉटिंग फैक्टर एक के बाद एक काम करते हैं, या फिर टिश्यूज से, डैमेज टिश्यूज से सिक्रीशन होता है थ्रोम्बोप्लास्टिन का, जिसे टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन हम कहते हैं। तो या तो क्लॉटिंग फैक्टर की वजह से या थ्रोम्बोप्लास्टिन की वजह से क्या होता है, देखो, थ्रोम्बोप्लास्टिन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोड्यूसिंग एंजाइम कॉल्ड एज प्रोथ्रोम्बिनेज। प्रोथ्रोम्बोप्लास्टिन जो टिश्यूज से सिक्रीट होता है या प्लेटलेट से सिक्रीट होता है,
उससे एक एंजाइम का फॉर्मेशन होता है जिसका नाम है प्रोथ्रोम्बिनेज। प्रोथ्रोम्बिनेज एंजाइम के दो फंक्शन हैं। पहला फंक्शन वो हेपारिन को इनएक्टिव बना देता है। देखो हेपारिन जो एक्टिव फॉर्म में जब होगा, हेपारिन इज अ एंटी कोगुलेंट विच डजंट अलाउ ब्लड टू क्लॉट। जब तक हेपारिन एक्टिव रहेगा ब्लड क्लॉट नहीं होगा। तो इस हेपारिन को इनएक्टिवेट करता है कौन? इनएक्टिवेट करता है प्रोथ्रोम्बिनेज। और प्रोथ्रोम्बिनेज को किसने बनाया? थ्रोम्बोप्लास्टिन ने बनाया। थ्रोम्बोप्लास्टिन कहां से आया? जो टिश्यू डैमेज हुआ है वहां से उसका सिक्रीशन हुआ। ओके, अभी फैक्टर जो मैंने बताया 12 फैक्टर, उसमें से फैक्टर 10 जो इनएक्टिव फॉर्म में रहता है, हमारे ब्लड में इनएक्टिव फॉर्म में रहता है, वो फैक्टर 10 इनएक्टिव फॉर्म से एक्टिवेट हो जाता है, मतलब एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। इट मे बी बिकॉज ऑफ क्लॉटिंग फैक्टर और इट मे बी बिकॉज ऑफ थ्रोम्बोप्लास्टिन। इन दोनों की वजह से वो इनएक्टिव फैक्टर 10 एक्टिव हो जाएगा। अब वो एक्टिवेटेड फैक्टर 10 और प्रोथ्रोम्बिनेज, रिमेंबर एक्टिवेटेड फैक्टर 10 और प्रोथ्रोम्बिनेज, ये क्या करेंगे? ये दोनों क्या करेंगे? ये हमारे ब्लड में एक प्रोटीन है जिसका नाम है प्रोथ्रोम्बिन, जो इनएक्टिव फॉर्म में होती है। दिस inactive protein, that is this inactive prothrombin is converted into active form called as thrombin. अब ये एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है जिसको थ्रोम्बिन कहते हैं। तो बच्चों प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में किसने कन्वर्ट किया? एक्टिवेटेड फैक्टर 10 ने या प्रोथ्रोम्बिनेज ने कन्वर्ट किया। प्रोथ्रोम्बिनेज कहां से आया था? थ्रोम्बोप्लास्टिन का सिक्रीशन था। अब थ्रोम्बिन बन गया जो एक्टिव फॉर्म है। ये एक्टिव थ्रोम्बिन क्या करेगा? ये एक्टिव थ्रोम्बिन क्या करेगा? हमारे ब्लड में एक और प्रोटीन है जिसका नाम है फाइब्रिनोजिन। हमने जब ब्लड का लिक्विड पार्ट प्लाज्मा के बारे में पढ़ा था तो उसमें हमने पढ़ा था प्लाज्मा में 5 प्रोटीन हैं, अल्ब्यूमिन, ग्लोब्यूलिन, फाइब्रिनोजिन, प्रोथ्रोम्बिन एंड हेपारिन। दिस ऑल आर दी प्रोटीन्स प्रेजेंट इन प्लाज्मा। तो फाइब्रिनोजिन नाम की जो प्रोटीन है ये सोल्यूबल फॉर्म में रहती है, प्लाज्मा में लिक्विड फॉर्म में सोल्यूबल फॉर्म में रहती है। इस सोल्यूबल फाइब्रिनोजिन को इनसोल्यूबल फॉर्म यानी फाइबर्स के फॉर्म में कन्वर्ट करता है। कौन कन्वर्ट करता है? थ्रोम्बिन कन्वर्ट करता है। थ्रोम्बिन का क्या फंक्शन है? फाइब्रिनोजिन को फाइब्रिन में कन्वर्ट करना। फाइब्रिनोजिन सोल्यूबल फॉर्म है और फाइब्रिन जो है वो इनसोल्यूबल फॉर्म है। फाइब्रिन के फाइबर्स बनते हैं, छोटे छोटे थ्रेड के जैसे स्ट्रक्चर्स बनते हैं, फाइबर्स बनते हैं। बच्चों ये फाइब्रिन के फाइबर्स, अब ये क्या करते हैं? फाइब्रिन के फाइबर्स हमारी ब्लड सेल को ऐसा एनमैश कर लेते हैं, ब्लड सेल को पकड़ लेते हैं और ब्लड सेल्स जिसमें आरबीसीज है, डब्ल्यूबीसीज, प्लेटलेट्स, जो भी ब्लड सेल है, ब्लड सेल्स अलोंग विद द फाइब्रिन फाइबर इट मेक्स द ब्लड क्लॉट। जब ब्लड उस साइड पे क्लॉट हो जाता है जहां पे इंजरी हुई है तो ब्लीडिंग स्टॉप हो जाती है। जो एक्सेसिव ब्लीडिंग हो रही थी वो ब्लीडिंग वहां पे स्टॉप हो जाएगी। सो दिस इज हाउ ब्लड क्लॉटिंग मैकेनिज्म टेक्स प्लेस। ऐसे हमारा ब्लड क्लॉट होता है। नाउ स्टार्टिंग विद द नेक्स्ट साइड हेडिंग 18.13, that is human heart. We have to start with the heart. As you know, in the blood vascular system we have to discuss 3 main side headings, that is blood, heart and blood vessel. ब्लड के बारे में हमने पढ़ लिया। नाउ वी आर स्टार्टिंग विद द डिटेल्स ऑफ हार्ट। बच्चों हमारा हार्ट जो है इट इज मेनली इट इज कंसिडर्ड एज पंपिंग ऑर्गन। हमारी बॉडी में जो ब्लड फ्लो कर रहा है, हमारी पूरी बॉडी में ब्लड हेड से लेके हमारे टोज तक जो ब्लड जाता है, इस ब्लड को सर्कुलेट करने के लिए जो प्रेशर रिक्वायर्ड है, दैट प्रेशर इज जनरेटेड बाय हार्ट। Heart is simply a pumping organ responsible for supplying the blood to the entire body and also responsible for bringing the blood from entire body to the heart. यानी हार्ट इतना प्रेशर जनरेट करता है, ब्लड में इतना प्रेशर बनाता है जिस प्रेशर की वजह से पूरा ब्लड बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट हो सर से लेके पैर तक और वो पूरा ब्लड वापस घूमते हुए हार्ट में आ जाए। इतना प्रेशर बनाना हार्ट के लिए जरूरी है। रिमेंबर, हार्ट इज जस्ट अ पंपिंग ऑर्गन। जैसे एक
पानी की पाइपलाइन में एक पंप का जो रोल होता है कि पानी में प्रेशर सप्लाई करना, प्रेशर प्रोवाइड करना ताकि पानी अपने डेस्टिनेशन तक पहुंच सके, वैसे ही हमारी बॉडी में हार्ट का रोल है कि बॉडी में ब्लड को अलग अलग जगह तक पहुंचाने के लिए हार्ट इज रिस्पॉन्सिबल। तो हार्ट इज मेनली अ पंपिंग ऑर्गन। रिमेंबर, according to biology, heart is not responsible for controlling other type of activities. Just like many times we correlate the other activities with the heart. Heart is responsible for emotions. Heart is responsible for feeling. It is responsible for jealousy, responsible for pleasure, responsible for love. ये सब काम करना हार्ट का काम नहीं है। ये सारी चीजें हमारे ब्रेन से कंट्रोल होती हैं। हार्ट इज जस्ट अ पंपिंग ऑर्गन। Now the second thing is, heart is a muscular organ. Muscular organ in the sense it is made up of muscles. आपने 11th में पढ़ा था, हमारे हार्ट में एक स्पेशल टाइप की मसल होती है जो मसल और कहीं पे नहीं होती है, जिसको हम कार्डियक मसल कहते हैं। तो हार्ट इज मेड अप ऑफ cardiac muscle. Heart is a pumping organ. It is made up of specialized muscle called as cardiac muscle. Heart is hollow muscular organ. यानी ऐसी मसल का ऑर्गन है जो अंदर से हॉलो है, अंदर उसके कैविटी है। It is reddish brown in color. Reddish brown कलर का स्ट्रक्चर है। Okay. The size of the heart is more or less similar to the size of closed fist. एक बंद मुट्ठी के बराबर इंसान का हार्ट होता है, इतना बड़ा हमारा हार्ट है। नाउ एज फार एज वेट ऑफ द हार्ट इज कंसर्न, हार्ट का वेट कितना है? एक एडल्ट मेल में हार्ट 300 ग्राम का होता है और एक एडल्ट फीमेल में हार्ट 1/4 किलो का, दैट मीन्स 250 ग्राम्स का हार्ट होता है। ओके, तो हार्ट का जो वेट है वो 300 to 250 ग्राम्स, डिपेंडिंग अपॉन मेल एंड फीमेल, ऑल्सो डिपेंडिंग अपॉन द साइज ऑफ द बॉडी, डिपेंडिंग अपॉन द वेट ऑफ द बॉडी। ये सारी चीजें मायने रखती हैं, लेकिन एक जनरल स्ट्रक्चर मैंने आपको हार्ट के बारे में बताया। ओके, नाउ हार्ट इज मोर और लेस कोनिकल इन शेप। हार्ट का जो शेप है ना, मोर और लेस कोनिकल इन शेप। हार्ट बुक के हिसाब से जो हार्ट शेप जिसे हम कहते हैं ना, व्हाट्सएप पे जो हार्ट आता है वैसा हार्ट नहीं है। हार्ट इज मोर और लेस कोनिकल इन शेप। हार्ट का स्ट्रक्चर ना, दिस इज नॉट एग्जैक्ट स्ट्रक्चर, हार्ट इज मोर और लेस कोनिकल इन शेप, राइट? दिस टाइप ऑफ हार्ट, ऐसा हमारा हार्ट है। हार्ट का जो ब्रॉड पोर्शन है, दिस ब्रॉड पोर्शन इज अ बेस ऑफ द हार्ट। ये हार्ट का बेस है, और जो इसका नैरो पोर्शन है दैट इज एपेक्स ऑफ द हार्ट। बेस ऊपर की तरफ होता है, एपेक्स नीचे की तरफ होता है। बच्चों, एपेक्स जो नीचे की तरफ है ना, वो नीचे की तरफ ऑलमोस्ट उसका टिप जो है वो डायफ्रम को टच करता है। डायफ्रम दैट इज अ मस्कुलर पार्टीशन विच डिवाइड्स द थोरैसिक कैविटी एंड एब्डोमिनल कैविटी ना, रिब केज के नीचे प्रेजेंट होता है। ओके, अभी हार्ट का जो एपेक्स है ना, हार्ट का जो बेस, ये पूरा हार्ट हमारे सेंटर में ना, ये सेंटर में हार्ट का बेस सेंटर में है, लेकिन उसका एपेक्स जो होता है वो थोड़ा सा लेफ्ट साइड में टिल्ट होता है। उसका एपेक्स लेफ्ट साइड में घुमा हुआ है। दैट इज वाई लेफ्ट साइड में अगर हम हार्ट बीट देखेंगे तो ज्यादा प्रोमिनेंट समझ में आएगी, राइट साइड में इतनी प्रोमिनेंट नहीं होती है। जनरली वी कॉल के हार्ट इज प्रेजेंट ऑन द लेफ्ट साइड, ठीक है, इट इज नॉट एग्जैक्टली ऑन द लेफ्ट साइड। उसका बेस ऊपर की तरफ मिडल में है, लेकिन उसका एपेक्स लेफ्ट साइड में टर्न होता है। ओके, सो दैट इज द लोकेशन ऑफ द हार्ट। अभी हार्ट जहां पे प्रेजेंट है, जिस जगह पे प्रेजेंट है, दैट स्पेस इज कॉल्ड एज मेडिएस्टेनम। मेडिएस्टेनम क्या है? हमारे देखो, ये थोरैक्स, ये यहां से लेके यहां तक ना, दिस इज द थोरैसिक केज। थोरैसिक केज, रिब केज भी कहते हैं, जिसके अंदर, रिब केज के अंदर दोनों साइड में लंग्स हैं और लंग्स के बीच में यहां पर हार्ट है। तो हार्ट लंग्स के बीच में प्रेजेंट है। लंग्स के बीच में जहां पर हार्ट प्रेजेंट है, दैट स्पेस इज कॉल्ड एज mediastinum. Mediastinum is a space present in between the lung where the heart is situated. Okay. Now remember, heart is covered by the covering, the special type of covering present around the heart called as pericardium. पेरिकार्डियम से मतलब पेरिकार्डियम ऑनवर्ड्स डिटेल मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में एक्सप्लेन करूंगा। आज मैंने आपको हार्ट का लोकेशन, उसकी साइज, उसका एक्सटर्नल अपीयरेंस, शेप, ये सारी चीजें बेसिक बताई। तो कवरिंग ऑनवर्ड्स विल सी इन द नेक्स्ट लेक्चर।